حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو آواز دی، انہوں نے جلدی سے نماز پوری کی اور حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے فرمایا اب تک کہاں تھے؟ عرض کی نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ اس سے ثابت ہوا کہ نمازی پر لازم ہے کہ نماز چھوڑ کر حضور کے بلانے پر حاضر ہو جائے، جو خدمت فرمائے اس کو پورا کرے، پھر نماز ہی میں ہے۔ علامہ قسطلانی نے شرح بخاری میں یہی لکھا ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس نے کلام کیا تو کس سے کیا؟ ان سے کیا جن کو نماز میں سلام کرنا واجب ہے۔ اگر کسی اور کو سلام کرتا تو نماز جاتی رہتی۔ اور کعبے سے سینہ پھیرا تو کس کی طرف پھیرا؟ ادھر جو کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ صحابہ پیر کے دن نماز میں مشغول تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کا پردہ اٹھا کر اپنے غلاموں کو نماز پڑھتے دیکھا تو مسکرائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ حضور علیہ السلام تشریف لانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ پیچھے ہٹے تاکہ صف کے ساتھ مل جائیں، اور مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ حضور علیہ السلام کی زیارت اور دیدار کی خوشی میں نماز کو توڑ دیں، مگر آپ نے اشارہ کیا کہ اپنی نماز کو پورا کرو۔ پھر آپ نے پردہ گرا دیا اور حجرے میں تشریف لے گئے۔ صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام کے دیدار کے لیے اپنا چہرہ کعبے سے پھیرا، کیونکہ مسجد نبوی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ کعبے کی جانب نہیں بلکہ مشرقی جانب ہے۔ اس جانب سے حضور علیہ السلام کو دیکھنا چہروں کو قبلے کی جانب سے پھیرے بغیر ممکن نہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، اور اشارے کو دیکھنا اور سمجھنا بھی بغیر اس کے متصور نہیں ہو سکتا کہ سب پروانوں کی نظریں اس شمع نبوت پر ہوں۔ نماز کی حالت میں اگر ہمارا رخ کعبے سے پھر جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن صحابہ اکرام نے اپنا رخ کعبے سے پھیر کر حضور علیہ السلام کی طرف کر لیا اور آپ کا دیدار کیا۔ ان کی نماز فاسد نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا رخ اگرچہ کعبے سے پھر گیا مگر اس ہستی کی طرف پھرا جو کعبے کا بھی کعبہ ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، ارے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے۔ جب مشرکین مکہ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھانا چاہا تو وہ آپ کو مکہ سے باہر مقام میں لے آئے۔ اس وقت حضرت خبیب نے مشرکین مکہ سے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی تاکہ شہیدان حق کے درمیان ان کی یہ سنت یادگار رہے۔ پھر آپ نے دعا کی اے خدا ان مشرکین میں سے کسی کو نہ چھوڑ اور ان سب کو جدا جدا ہلاک فرما دے۔ اس کے بعد آپ کو سولی کے قریب لایا گیا اور آپ کا چہرہ مدینہ کی طرف پھیر دیا گیا اور کعبہ سے آپ کا رخ پھیر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے کیا نقصان ہے؟ حق تعالیٰ فرماتا ہے فَأَيْنَهَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر رخ کرو گے حق کا رخ اسی طرف ہے۔ پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خود مدینہ منورہ کعبہ کا اور ان کا حقیقی قبلہ ہے، کیونکہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ حضرت علامہ مولانا احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ حرم رسول میں موجود ہو کر پرسوز گزارشات اور التجائیں کر رہے تھے۔ چہرہ حضور علیہ السلام کی طرف تھا اور پیٹھ کعبہ کی جانب تھی۔ نجدی پہرے داروں نے منع کیا اور کہا کہ کعبہ کی طرف پیٹھ نہ کرو بلکہ کعبہ کی طرف منہ کر کے حضور علیہ
अलैहिस्सलाम की तरफ पीट कर लो। आपने उनके मना करने की तरफ तवज्जो न की। दूसरे दिन आपको काजी के सामने पेश किया गया। काजी ने कहा, क्या आप कब्र रसूल को काबा से अफजल समझते हैं? आपने फरमाया, तुम काबे की बात कर रहे हो, मैं तो उस जगह को अर्श से भी अफजल जानता हूं। उसने पूछा, दलील? आपने फरमाया, देखो अज़रूगे कुरान, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे हैं और अल्लाह ताला फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारे मरातिब में ज्यादती करूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने ज्यादती दी, जमीन से चौथे आसमान पर ले गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां भी शुक्रगुजार रहे। चाहिए यह था कि उनको और बुलंदी पर ले जाता, यहां तक कि अल्लाह ताला उनको अर्श पर ले जाता, लेकिन अल्लाह ताला उनको हुजूर के पहलू में लाएगा। मालूम हुआ जो अजमत और बुलंदी जवारे मुस्तफा में है वो अर्श को हासिल नहीं। जब आपने ये दलील कायम की तो नजदी काजी दम बखुद रह गया। इस दलील से मालूम हुआ कि कब्र अनवर का वो हिस्सा जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के जसद अक़दस से लगा हुआ है वो यकीनन अर्श से अफजल है और ये मकाम काबे को हासिल नहीं। बस साबित हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम काबे का भी काबा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया तो हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने काबा की छत पर चढ़कर जोहर की अजान दी। दुनिया भर की मसाजिद में जब अजान होती है तो मुअज्जिन अपना रुख काबा की तरफ करते हैं, लेकिन जब हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब काबे की छत पर अजान दी तो उन्होंने अपना रुख किस तरफ किया होगा? उलमा फरमाते हैं कि उस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ फरमा रहे थे। तवाफ की हालत में जिधर नबी करीम अलैहिस्सलाम का रुख मुड़ता जाता है, काबे की छत पर अजान की हालत में हजरत बिलाल का रुख भी उधर मुड़ता जाता है, इसलिए कि हुजूर काबे का भी काबा है। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा तो फरिश्ते काबे को दुल्हन की तरह सजाकर मैदान हश्र में ले जाएंगे। उसी दरमियान उनका गुजर रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर से होगा। उस वक्त काबा व ज़बान फसी कहेगा, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहि सलाम जवाब में फरमाएंगे, वालेकुमुस्सलाम या बैतुल्लाह, बता मेरी उम्मत ने तेरे साथ क्या सुलूक किया? काबा अर्ज करेगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तेरा जो उम्मती मेरी ज़ियारत के लिए आया उसकी शफाअत मैं करूंगा और जो मेरी ज़ियारत के लिए ना आ सका उसकी शफाअत आप फरमा दें। काबा क़यामत के दिन हुजूर की बारगाह में हाजिरी देगा, इसलिए कि आप काबे का भी काबा हैं। सुभान अल्लाह। जिस रात हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर में मौजूद न थे, काबे की दीवार मरम्मत करने तशरीफ ले गए थे। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं मरम्मत के बाद काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने देखा काबा चारों तरफ झुका और मकामे इब्राहिम की जानिब सजदे में पड़ गया और तकबीर और तस्बीह की आवाजें आने लगी। थोड़ी देर बाद दीवारों पर खड़ा हो गया और काबे के अंदर से आवाज आई, सब खूबियां अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मखसूस किया। अरकाने काबा एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं बाबू सफा से निकलकर आमना के घर की जानिब रवाना हुआ तो मैंने कुछ फरिश्ते देखे जो कह रहे थे, कद जाकुम रसूलुल्लाही, तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल आया। मैंने आंखें मलते हुए कहा, ये ख्वाब है या बेदारी? आमना के मकान पर कुछ परिंदे चक्कर काट रहे थे और कमरे से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? मुझे बताया गया खैरुल बशर की विलादत हुई है। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो आमना ने दरवाजा खोला।
उन पर निफास का कुछ असर न था। मैंने आमना से पूछा, तुम्हारी पेशानी की चमक कहाँ गई? आमना ने कहा, वो चमक दुनिया में उतर आई है। मैंने आमना से कहा, मुझे पोता दिखाओ। आमना ने कहा, आइए। वो कमरे में है। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि फरिश्ते फौज दर फौज नाजिल हो रहे हैं। काबा हुजूर की विलादत की रात चारों तरफ झुका। उन चारों तरफ हजरत आमना का घर भी यकीनन मौजूद था, जिसमें सरकारे कायनात तशरीफ फरमा थे। तो काबा को हुजूर अलैहिस्सलाम के घर की तरफ झुकना इस बात की तरफ इशारा है कि आप काबे का भी काबा है। जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। हजरत इमाम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सहाबा और ताबईन का तरीका यह है कि जब तुम नबी करीम अलैहिस्सलाम की कब्र पर आओ तो अपनी पीठ किबले की तरफ और मुंह कब्र अनवर की तरफ करो, फिर कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मालूम हुआ कि इमाम आजम का मसलक यह है कि दुआ के वक़्त चेहरा हुजूर की तरफ होना चाहिए। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने एक मुद्दत तक काबे का तवाफ किया और एक मुद्दत हो गई है कि काबा आकर मेरे गिर्द तवाफ करता है। हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का तरीका यह था कि नमाज फज्र पढ़ाने के बाद आप लोगों की तरफ चेहरा करके दुआ मांगते थे और दुआ के बाद आप मुराकबा करते थे। एक मर्तबा अरफा के दिन नमाज फज्र के सलाम के बाद आप किबला रू होकर तशरीफ फरमा थे, यहाँ तक कि आफताब बुलंद हो गया। उसके बाद मुराकबा खत्म करके आपने अपने जानने वालों से फरमाया कि आज काबे की जियारत का शौक गालिब आया। अचानक मैंने देखा कि काबा मेरे तवाफ के लिए आ गया। ताज्जुब की बात है, असहाबे कश्फ इस हाल से गाफिल थे, वगरना वो भी इस वक्त मेरा तवाफ करते। एक मर्तबा हजरत मखदूम जहानिया रहमतुल्लाह ताला अलैह काबा मुबारका में हाजिर थे। आधी रात का वक्त था कि काबा आपको नजर न आया। अर्ज की इलाही, काबा नजर नहीं आया। इरशाद हुआ, काबा शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के तवाफ के लिए दिल्ली गया हुआ है। आपके दिल में ख्याल आया कि सुबहान अल्लाह, मैं तो काबे के तवाफ को आऊं और काबा खुद उनके तवाफ को जाए, लिहाजा बेहतर यही है कि मैं भी उनके तवाफ को जाऊं। आप वहां से चल पड़े और दिल में तीन चीजों की नियत की। एक तो ये उनका तवाफ करूं, दूसरी ये कि उनके वुजू का पानी पीऊं, तीसरी ये कि उनकी पालकी को कंधे पे लादूं। जब आप दिल्ली में हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुए तो हजरत उस वक्त किबला रू होकर वुजू फरमा रहे थे। मखदूम जहानिया आपके रूबरू इस नियत से खड़े हो गए कि जब आप वुजू और दोगाना से फारिग हो तो मुलाकात करूं। हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सर के मस्से से फारिग हुए तो पांव धोने के लिए आप मशरिक की तरफ हो गए। हजरत मखदूम जहानिया भी सामने आ गए। जब आप वुजू से फारिग हुए फिर किबला की तरफ मुंह करके बैठ गए और अपने मुबारक बालों में कंगा फरमाने लगे। मखदूम जहानिया भी आपके सामने आ गए जहां पहले खड़े थे और जब वो दोगाना से फारिग हुए तो आपस में मुलाकात हुई। हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, ए फर्जंदे रसूल, तुमने तवाफ की नियत की थी, वो तो हासिल हो गया। वुजू का पानी जो आप खूरे में बाकी है वो पी लो और पालकी उठाने की जो नियत की थी उसके लिए इतना काफी है कि तुम अपना कंधा उसके पाए से लगा लो। उसके बाद हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खिलाफत की नियत से एक तैबंद तलब किया और उनके सामने रख दिया कि इसे पहन लो। और आपका मतलब यह था कि वो फर्जंदे रसूल हैं, हम अपनी जानिब से एक कपड़ा देते हैं ताकि वो इसे पहन लें। मखदूम जहानिया ने वो तैबंद अपने सर पर बांध लिया। मालूम यह हो रहा है कि ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं, जिनकी जियारत के लिए, जिनके तवाफ के लिए खुद काबा चलकर आ रहा है।